House, a complete family showroom, opposite Bank of Baroda, Station Road, ضلع وقارآباد, تانڈور. ہمارے یہاں ہم اقسام کے شوز، چپل، سینڈل، اسکول شوز واجبی دام پر دستیاب ہیں. مزید تفصیلات کے لیے ان نمبرات 9032506444 یا 9160181478 پر رابطہ پیدا کریں. السلام علیکم ناظرین، NH TV میں آپ سبھی کا استقبال ہے. وقف ایکٹ میں ترمیم کے بہانے مودی حکومت وقف بورڈ کے اختیارات سلب کرنا چاہتی ہے. مرکزی حکومت کی اس سازش کے خلاف ملی محاذ کے وقف آندولن کا اعلان. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی NDA 3 حکومت وقف ایکٹ میں ترمیم کے بہانے وقف بورڈ کی اختیارات کو سلب کرنا چاہتی ہے. ان خیالات کا اظہار خواجہ فیاض الدین انور پاشا سرپرست ملی محاذ نے آج ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا. اس صحافتی کانفرنس میں محمد تقی حسین تقی کنوینر، حافظ ادریس سراجی، مرزا قدوس بیگ کو کنوینرز، عبداللہ سنی کنوینر لیگل سیل، محمد نور اللہ خان، محمد موئز، محمد خالد، مصباح الدین جوائنٹ کنوینرز نے بھی شرکت کی. محمد تقی حسین نے مزید کہا کہ دراصل مودی حکومت RSS کے اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جس کے تحت فاشسٹ تنظیمیں وقف ایکٹ کو برخاست کرتے ہوئے اوقافی جائیدادوں پر قبضے کا منصوبہ رکھتی ہیں. اس کے علاوہ اس طرح وہ متھرا اور کاشی میں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی چاہ رکھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس خصوص میں ملی محاذ کی جانب سے مختلف مسلم سیاسی اور سماجی تنظیموں سے مشاورت کے بعد احتجاجی لائحہ عمل تیار کرے گی. ویڈیو میں ایک خاتون نمائندے کو یقینی بنایا گیا تھا کہ جب یہ کمیٹیاں موجود ہیں تو پھر مزید خواتین کی نمائندگی کی ضرورت کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس بہانے سے پچھلے دروازے سے وقف ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے وقف کے جو اختیارات ہیں اس کو سلب کرنا چاہتی ہے، اور جو سارے ملک میں آج جو 8,70,000 اوقافی جائیدادیں ہیں ان جائیدادوں پر جو وقف بورڈ کے حقوق ہیں ان کو کمزور کرتے ہوئے ان جائیدادوں کو تباہ و تاراج کرنا چاہتی ہے. دراصل موجودہ حکومت RSS کے اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جس کے ذریعے عرصے دراز سے RSS اور دیگر فاشسٹ تنظیمیں چاہتی ہیں کہ وقف ایکٹ ابالش کر دیا جائے، یعنی کہ ختم کر دیا جائے اور اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے. یہ منشا ان کا ہے اور آج مودی حکومت جو NDA 3 حکومت ہے اس پر عمل پیرا ہے. لیکن ملک کا مسلمان، باشعور مسلمان اس کی مخالفت کرے گا، اور ملی محاذ محبوب نگر بھی انشاءاللہ اس وقت یہ میڈیا کے ذریعے عوام تک، بالخصوص مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو آج بیدار ہونا پڑے گا. اگر آج ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے جو اثاثے، جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے جو اثاثے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، یہ وقف کی جائیدادیں کیا ہیں؟ وقف کی جائیدادیں قوم کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے چھوڑی گئی ہیں. اگر آج ہم ان جائیدادوں کے تحفظ کے لیے نہیں اٹھیں گے تو سمجھ لیجیے کہ پھر آگے ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا. آج ہم ملی محاذ کے ذریعے عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ حکومت کے اس سازش کے خلاف آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر احتجاج بلند کرنا ہوگا، اور حکومت کو اس وقف ایکٹ کی ترمیم کو روکنے کے لیے حکومت پر دباؤ بنانا ہوگا. اس کے علاوہ ہم جو انڈیا اتحاد ہے، سیکولر اتحاد، اس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ لوگ تمام مل کر اس بل کی مخالفت کریں اور اس بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ناکام بنا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو اور جنتا دل یونائٹڈ کے سربراہ نتیش کمار صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے اس اقدام کو، یعنی کہ مسلمانوں کی جو جائیدادیں ہیں، اوقافی جائیدادیں ہیں، ان کو تباہ و تاراج کرنے کے اس اقدام کے خلاف اپنا موقف اختیار کریں، اور وزیر اعظم کو یہ باور کرائیں، ان پر یہ پریشر بنائیں کہ وہ اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ سے دستبردار ہو جائیں. اس کے علاوہ میں ہمارے ریاست کی جو جماعتیں ہیں، آندھرا اور تلنگانہ کی جو جماعتیں ہیں، جن کی راجیہ سبھا میں جن کے اراکین کی اکثریت ہے، لوک سبھا میں جن کی نمائندگی ہے، YSRCP اور BRS سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اگر پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کی جاتی ہے، وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی بل پیش کی جاتی ہے، تو اس کی مخالفت میں ووٹ دیں. سابق میں جس طریقے سے
ट्रिपल तलाक के मामले में गैर हाजिर होकर ये कहा गया था कि हमने तायद नहीं की। अगर उस तरह की शरारत इस बार करेंगे, अगर गैर हाजिर होंगे तो फ़ायदा रास्त फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकारी बेंचेस को होगा, क्योंकि तादाद कम होगी, इस तरह उनके पास अक्सरियत आ जाएगी। आज एनडीए के पास राज्यसभा में अक्सरियत नहीं है, और अगर ये दो जमातें वाईएसआरसीपी और बीआरएस इस बिल के खिलाफ वोट देती हैं तो ये बिल राज्यसभा में आसानी से गिर सकता है। लिहाजा हम के चंद्रशेखर राव साहब से और वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब से अपील करते हैं कि आप अपने अराकीन को ये हिदायत दें, अगर बिल पार्लियामेंट में पेश होता है तो वो इस बिल के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करें और इस बिल को नाकाम बनाएं। खुर्रम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अफसोस के साथ ये बात कहने की ज़रूरत है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट 40 तरामीम के साथ वक्फ एक्ट में तब्दीली करने के लिए आज पार्लियामेंट में बिल पेश करने जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये पहला मौका है आज़ादी के बाद हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर हुकूमत अपना तसल्लुत कायम करने के लिए और मुस्लिम कौम को नुकसान करने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है। लिहाजा मिली महाज इसकी मुखालिफत करता है और मजम्मत करता है ऐसे चीज़ों की, और सेकुलर जहन रखने सेकुलर पार्टी वालों से भी हमारी गुजारिश है कि इस बिल की मुखालिफत करे और मिली महाज आगे लाए अमल तैयार करते हुए इस पर एहतजाज करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेगी। लिहाजा जहाँ तक हो सके हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, और हमारी जायदाद जो वक्फ की लाखों एकड़ ज़मीन है, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सबको नुकसान पहुंचाकर वो बीजेपी हुकूमत अपने कब्ज़े में लेकर मनमाने करना चाह रही है। लिहाजा हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, शदीद तरीक़े से मुखालिफत करते हैं, और सबसे एहतजाज करने के लिए हर एक से हम अपील करते हैं कि हर आदमी को चाहिए कि इस पर मुखालिफत करे, और सेकुलर पार्टीज़ हम आगे आकर इस बिल की मुखालिफत करके इस बिल को पार्लियामेंट में पेश न होने के लिए रोकने की ज़रूरत है। मरकज़ की हुकूमत की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने के बाद मीडिया की जानिब से जो सामने आई है, इससे मुसलमानों में तशवीश की लहर पाई जाती है। वो इसलिए कि 1950 में प्रॉपर्टी कस्टोडियन लॉ लगाकर जिस तरह से मुसलमानों की जायदादों को सल्ब कर लिया गया था और जो कुछ बचे हुए ज़मीनात थे वो वक्फ़ को करने लगे थे। उस वक्त 1955 में वक्फ़ क़ानून लाया गया था उसके तहत, तो तभी से ये कोशिश की जा रही है थी कि मुसलमानों के जो वक्फ़ की गई इमलाक को किस तरह से सल्ब किया जाए। इसीलिए वक्फ़ के क़ानून में हमेशा तो नरमी अख्तियार करते हुए वो कई ज़मीनात के ऊपर क़ाबिज़ीन ने कब्ज़ा करते हुए अदालतों की तरफ पे ज़ेर इल्तवा बनी हुई थी, और जो कुछ रह गई थी ज़मीनें उसके लिए अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, हिंदुस्तान में दो तरह की जुडिशनल है मजिस्ट्रेट है, एक जुडिशनल मजिस्ट्रेट है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। हम ये चाहते हैं कि औक़ाफ़ के जो मामला औक़ाफ़ के जो वो जो क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ जो केसेस जो वगैरह जो चलते थे वो जुडिशनल मजिस्ट्रेट के तहत ही चले। अभी अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तहत लाएँ तो सियासत का दबदबा आ जाएगा उसमें, और जो बची कुची ज़मीनें हैं औक़ाफ़ की जो अल्लाह की जायदादें होती हैं ये क़ाबिज़ीन की तरफ चले जाएंगे। इससे हमें ख़दशा है, और इस वक्त ज़रूरत है मुसलमानों को इस बात को समझाने के लिए कि मुझे रास्ता दिखा के मेरे कारवां के लूटा के मिज़दाक़ है ये जो मरकज़ की जानिब से, तो हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम शऊर बेदार करेंगे इस मद में। मिली महाज की जानिब से तमाम अज़लाओं का अहाता किया जाएगा, तालुक़ों का, शहरों का और गाँव का, कस्बों का, और जो है ना खरिया हम घूम के हमें शऊर बेदार करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे जिस वक्त तक मरकज़ी हुकूमत वापस ना ले बिल ये। लिहाजा आप मीडिया की जानिब से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि वो मेरे जितने भी कौम के जो लोग हैं उन सब को जो है ना इसमें हिस्सा लेते हुए एहतजाज करने की ज़रूरत है।
तकरीबन रीजनल पार्टीज को लेटर लिख ఓకే नाम लेना है तो भी लो। అస్సలాముఅలైకుం. భారతదేశంలో ఏదైతే మరో ఒకటి న్యాయానికి చట్టంగా వ్యతిరేకానికి ఒక లా తేబోతున్నారో అది వక్ఫ్ బోర్డ్కి చెందినది. వక్ఫ్ బోర్డ్ 1951లో ఏదైతే పార్లమెంట్లో వచ్చినదో 2013లో దానికి న్యాయపరిమితమైన దానికి హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ముస్లింల హక్కులను అధిగమించడానికి, ముస్లింల ప్రాపర్టీస్ని గుంజుకోవడానికి ఏదైతే చట్టంలో అమెండ్మెంట్లో దాంట్లో నివారణ చేయడానికి ఏదైతే చట్టం తెస్తుందో ఇదంతా చట్ట వ్యతిరేకం. అదేవిధంగా ఈరోజు మిల్లీ మహాజ్ మహబూబ్ నగర్ ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళందరికీ సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది, లెటర్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా పరిపూర్ణమైన చట్టంలో ఉన్న వక్ఫ్ బోర్డ్ దాని నియమాలకు వ్యతిరేకంగా తేయడానికి ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తున్నదో ఇది పెద్ద కుట్ర, ముస్లింల వ్యతిరేకంగా కుట్ర అని భావిస్తున్నాము. అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 8 కాంగ్రెస్ ఎంపీలకు కూడా నేను మా మిల్లీ మహాజ్ నుంచి తరఫు నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తాము. ఎప్పుడైతే పార్లమెంటులో రాజ్యసభలో ఈ బిల్లు వస్తుందో దానికి వ్యతిరేకంగా మీరు పక్కా దీనికి వ్యతిరేకంగా ముస్లింల హక్కులకు లోబడి ఓటేయాలని అడుగుతున్నాము. జజాకల్లాహ్. అస్సలాము అలైకుం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मिल्ली महाज महबूब नगर, सबसे पहले मैं हमारे और मेरी पार्टी के साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब और उसी तरह हमारे टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब केटीआर साहब से एक गुजारिश ये करता हूँ कि साबिक़ में टीआरएस पार्टी 3 तलाक बिल के टाइम पे पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था, जिसका खामियाजा हमको ये इलेक्शन में भुगतना पड़ा. तो ये एक अच्छा मौका हमारी टीआरएस पार्टी के पास है कि जो मरकज़ी हुकूमत, एनडीए की हुकूमत जो वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करना और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र डालते हुए और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ बन चुकी है औकाफ के, उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हमारी पार्टी बीआरएस पार्टी और केटीआर साहब के पास एक अच्छा मौका है कि वो मुसलमानों को दोबारा एतमाद लेने के लिए बीआरएस पार्टी का कोई लोकसभा मेंबर नहीं है, लेकिन राज्यसभा में बीआरएस के कई रुकने पार्लियामान है, राज्यसभा मेंबर है. उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर ये राज्यसभा में ये बिल आया तो आप इसको वॉकआउट नहीं कीजिए, बल्कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और इस बिल के ख़िलाफ़ आप जो है वोट डालिए. इससे आपका, हमारी बीआरएस पार्टी का एतमाद तेलंगाना के मुसलमानों में जो है बहाल हो सकता है. दूसरी बात, जब चंद्रबाबू नायडू जो बाजू आंध्र प्रदेश में है, वो अपने कई स्पीचों में कह चुके हैं मरकज़ में अगर कोई भी ऐसी बिल अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आती है तो हम जो है उसके ख़िलाफ़ जाकर वोट करेंगे. तो मैं चंद्रबाबू नायडू साहब और पवन कल्याण जो एनडीए में अलायंस है उनसे भी ये मुतालिबा करता हूँ. आप अपनी पब्लिक मीटिंग में कह चुके हैं कि अगर मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, नरेंद्र मोदी की हुकूमत अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बिल लाती है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे बल्कि बोले. इसी तरह हम जो है आरएलडी के जयंत चौधरी है, इसी तरह चिराग पासवान है और कर्नाटक के जेडीएस के कुमारस्वामी है, इनसे भी हम मुतालिबा करते हैं अगर, और बिहार के नीतीश कुमार है, जो ये सब एनडीए में मिले हुए हैं, हम इन सब से मुतालिबा करते हैं महबूब नगर तेलंगाना के मुसलमान, अगर आपके दिलों में थोड़ी भी मोहब्बत मुसलमानों से है तो आप इस बिल को पार्लियामेंट में आने से रोकिए और अपने आका नरेंद्र मोदी को आगाह कीजिए कि अगर ये बिल अगर पार्लियामेंट से आएगा तो हम जो है एनडीए से बाहर चले जाएंगे. और इसी तरह महबूब नगर का मिल्ली महाज, महबूब नगर के दानिश्वर और सियासी जमातें और उलमा और जितने भी तंजीमें हैं उन सब से अनकरीब में मुशावरत कर एक बड़े पैमाने पर महबूब नगर में एक इसके ख़िलाफ़ बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम भी करना चाह रहे हैं. तो हम बहुत जल्द अनकरीब
तमाम ज़िम्मेदारों से मिल के एक बड़े पैमाने पर भी हम ये एहतजाज करेंगे। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से ये कह रहे हैं कि आप हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ भी बिल लाते हैं उसमें ख़वातीन को शामिल करते हैं, ख़वातीन के ज़रिए से आप लाने के बात करते हैं। आपको अगर मुसलमान ख़वातीन से अगर उतनी मोहब्बत है तो आप बिल्किस बानो, गुजरात की बिल्किस बानो है, उसके साथ पहले आप इंसाफ कीजिए। और आप हर हमेशा आप जो है 5 अगस्त आता है तो जो है ऐसा अपना हिंदुत्व का और आरएसएस का एजेंडा आप लाकर जो है एक हमारी हिंदू कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, जबकि आप नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास बोल के बोलते हैं। सरासर ये झूठ है। आप अगर हकीकत में आप एक हिंदुस्तान के दस्तूर को मानते हैं, वज़ीर आज़म और भारतीय जनता पार्टी अगर आप हिंदुस्तान के दस्तूर को मानते हैं तो आप ऐसी ये साजिशें आप जो है ख़त्म कीजिए। और जो है आपको तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान की आवाम हुकूमत करने का मौका दी है तो डेवलपमेंट भी कीजिए, हर कौम हर कम्युनिटी के आगे बढ़ने के लिए कीजिए। अगर ये बिल अगर पार्लियामेंट में आता है तो हम तमाम मुसलमानों को किसान एहतजाज से सबक लेते हुए किसानों की तरह हमको बूढ़े और बड़े और मासूम और बच्चों को सबको रोड पर आना पड़ेगा। जब तक हम रोडों पर नहीं आएंगे ये हुकूमत सुनने वाली नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत को भी इंतबा करते हैं आप इस बिल को फ़ौरन रोकिए। अगर आता है तो हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हैं आप जो है किसानों की तरह जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। मुझे जो मौका दिया है शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।